Hello guys, once again welcome back to our YouTube channel. Today's topic आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेल कॉलम साइकिल. Okay, so guys, let us see बेल कॉलम cycle or this cycle you may call Joule cycle, Joule, Joule cycle. Also sometimes you may also call reverse Brayton cycle. Brayton cycle. Actually, it is one type of air refrigerator. Okay. This air refrigeration cycle was developed by Ben Quality scientist. Okay. It is one of the earliest and oldest types of refrigerator that is used and installed in old ship for carrying the frozen meat. Okay. So basically, it is a modification of a reverse Carnot cycle. तो जनरली क्या है इसका स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम एंड प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के ऊपर हम लोग समझते हैं. जैसे कि हम लोग रिवर्स कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस देखे थे. व्हिच ऑफ द डिफरेंट 4 प्रोसेस वेर डिस्कस? Isentropic compression process. Okay, so guys, let us see first process. We have to see process first 1 to 2, that is isentropic compression process. Second है process 2 to 3, constant pressure. यहाँ पे होता है constant pressure cooling process. ओके, देखिए थर्ड आएगा आपका प्रोसेस 3 to 4, आइसेंट्रोपिक expansion process. Okay guys, and last one constant pressure process 4 to 1, that is nothing but a constant pressure evaporation process. So guys, let us see, we will discuss first of all, we will draw the schematic block diagram. This one 1 to 2, that is compressor. 2 to 3, here it is cooler or heat exchanger. This one or condenser, whatever you may call. Here we will use cooling water. ठीक है, कूलिंग वाटर इनलेट आउटलेट जो रेफ्रिजरेंट आएगा ये कूलर के अंदर, हीट एक्सचेंजर के अंदर, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग कूलिंग वाटर का यूज करेंगे. कूलिंग वाटर इनलेट एंड आउटलेट. यहां से आपका होता है एक्सपांडर. टू टू थ्री ये प्रोसेस हो गया, हीट एक्सचेंजर, कूलर. और 3 to 4, सो गाइस यहां पे होता है आपका एक्सपांडर और एक्सपांशन डिवाइस. इसके बाद प्रोसेस होती है रेफ्रिजरेटर और इवेपोरेटर, जहां पे आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है. ओके, दिस वन रेफ्रिजरेटर और इवेपोरेटर रिजल्ट. ये स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम होगी यहाँ पे.
ये डायग्राम को हम लोग समझते हैं प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के। ओके राइट, सो चलिए फिर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2, 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। 3 to 4 क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है। और लास्ट वन कांस्टेंट प्रेशर यू हैव प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, P1 is equals to P4, यहाँ पे देखिए P2 is equals to P3, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बना लेते हैं टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। ओके गाइस, सो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 टेम्परेचर ड्रॉप फॉर्म, ठीक है। ये हो गया आपका 3 to 4 और 4 to 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका क्या है, एंट्रोपी H3 is equals to H4 कांस्टेंट रहेगा 1 से 2 में, H1 is equals to H2। टेम्परेचर T4 यहाँ पे आपका रहेगा T3, T1 और ये T2 टेम्परेचर। यहाँ पे आपका क्या होगा, वॉल्यूम V1 हियर, V2 V4 V3, ठीक है। चलिए now we will see how actually the works of that air refrigerator। the main component तुम लोगों ने देख ली है कि consist of compressor, heat exchanger और condenser और water cooler, then expansion device or capillary tube or refrigerant flow control valve, and then evaporator or refrigerator। These are the main component of this system। अब यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड है और जो वर्किंग मीडियम वो कौन सा होगा, एयर मीडियम हम लोग यूज करेंगे। So here it is being used here as a refrigerant। So what will happen guys, there is a यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा रेफ्रिजरेटर से या इवापोरेटर से जिसका प्रेशर टेम्परेचर कम होगा, जो ठंडी हवा रहेगी, we will take the cold air which is leaving from the evaporator having low pressure and low temperature of that cold air which is passing through in this compressor cylinder। And what will happen in compressor cylinder, because of that compression process the pressure and temperature of that given air it will increase। तो यहाँ पे आपको एयर जो मिलेगी वो वार्म एयर मिलेगी, हॉट एयर मिलेगी, जो सुपर इंटरस्टेट कंडीशन में होगी, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब इसको अगर ये डायग्राम के थ्रू अगर समझना है तो कैसे समझेंगे, हाउ विल आई इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर। सो कैन यू इमेजिन on this curve PP and TS diagram। So see here guys, so 1 to 2 there is an isentropic compression process takes place, there is a pressure is increased from of that given refrigerant here P1 to P2। एक ग्राफ जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर आपका बढ़ रहा है। तो TS डायग्राम में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, तो T1 से लेकर T2 तक ये डायरेक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। So pressure and temperature of the air is goes on increases as per this curve PV and TS diagram during the compression process। And what about the volume of the given refrigerant air? The specific volume of the air is decreased from V1 to V2। In that process there is no heat is addition and there is no heat is rejected per kg of air। That means what? The heat transfer rate is 0, the value of Q is 0, there is no heat transfer।
takes place during 1 to 2 process. अब गर्म हवा कंप्रेसर सिलेंडर से यहां से बाहर निकलेगी, जो इंटर करेगी किसके अंदर जाएगी, हीट एक्सचेंजर के अंदर जाएगी. So what is the function of that cooler or heat exchanger? जो गर्म हवा आई है उसको ठंडा करने के लिए हम लोग ये डिवाइस यहाँ पे यूज करेंगे. इसका प्रेशर और टेम्परेचर ऑब्वियसली उसका ज्यादा है, कंप्रेसर से बाहर निकला, जो कंप्रेसर का आउटलेट जो इनलेट होगा ये कूलर का, ये हीट एक्सचेंजर का या कंडेंसर का. अब यहाँ पे हम लोग वाटर क्लीन यूज कर रहे हैं, वो जो वार्म एयर है उसको ठंडा करने के लिए. ठीक है, वो अपनी जो हीट है ये ट्यूब्स के जो पास होगी, जो हीट को अब्सॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देगा, उसका टेंपरेचर ड्रॉप कर देगा. तो एयर का टेंपरेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 to 3 there is a कांस्टेंट प्रेशर में आपका कंडेंसेशन हो रहा है, तो टेंपरेचर आपका कम हो गया बट प्रेशर कांस्टेंट है. सो इसको अगर पीवी डायग्राम में देखना है तो 2 to 3 दिस प्रोसेस there is a pressure remains constant, P2 is equals to P3 of that given air refrigerant. But what about the temperature of that given air refrigerant? अपनी अंदर की जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया एटमॉस्फेयर के अंदर, उसका हीट निकल गया तो टेंपरेचर फॉल डाउन हो गया. तो 2 to 3 दिस प्रोसेस, अगर पीएच डायग्राम में इसको समझना है तो क्या कैसे समझेंगे, उसका टेंपरेचर जो है वो कम हो रहा है. ये लाइन का इंडिकेट कर रही है नीचे की तरफ आ रही, तो टेंपरेचर ऑफ दैट गिवन रेफ्रिजरेंट इज डिक्रीज फ्रॉम T2 to T3. But what about the specific volume of that given air is also decreases from V2 to V3. V2 से लेके V3 तक एक कप वॉल्यूम जो है वो कम है. बट यहाँ पे क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट जो निकल रही 2 to 3 ये प्रोसेस में, it is rejected. How much quantity or how much amount of heat that is extracted from this given system to the atmosphere को हमें find out करना है. So how will you find out? So heat is rejected during the process 2 to 3. So Q is equals to mCp del T. हमें जो हीट निकाला है पर केजी ऑफ एयर के लिए निकालना है, तो पर केजी है तो मास फ्लो रेट कितना होगा, Ma की वैल्यू 1, तो Cp स्पेसिफिक हीट इन ब्रैकेट T2 minus T3 ये टेंपरेचर डिफरेंस हो जाएगा, बिकॉज़ प्रोसेस 2 और 3 के बीच में होगा. इतना हीट रिजेक्टेड हो गया. अब हमारी जो रेफ्रिजरेंट एयर है वो कहां तक आ गई, ये कंडेंसर जो हीट एक्सचेंजर है यहां तक अभी हम लोग पहुंचे. आपकी एयर जो है वो अभी कहां पे पास होगी, we taking the air that is cleaned from this air cooler or a heat exchanger and that will be passing through this expansion wall or throttling device. So here it is, the air is expanded asymptotically. So during this expansion process, so what will happen? What about the temperature and pressure and volume of that given air refrigerant? So because of that expansion of air or expansion process takes place, the pressure is decreases from P3 से लेके P4 तक. ये एयर का प्रेशर जो है ये नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है. अगर हम लोग पीएच डायग्राम के ऊपर समझेंगे तो ऑब्वियसली 3 to 4 प्रोसेस क्या इंडिकेट कर रहा है, टेंपरेचर इज गोस डाउन T3 से लेके T4 तक. ये जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन, मतलब टेंपरेचर जो है आपका एयर रेफ्रिजरेंट का घट रहा है. But what about entropy? But entropy is remains constant. H3 is equals to H4. During this process, there is no heat is added or heat is rejected per kg of air. So that means what? Heat transfer rate is 0. The value of Q is 0. There is no heat is transfer during this 3 to 4. सिर्फ क्या होगा, एक्सपांशन 1
goes on increases P3 से लेके P4 तक। अब यहाँ तक हमारी रेफ्रिजरेंट एयर आ गई। अब एयर जो है वो एक्सपेंशन वाल्व से निकलेगी और कहाँ जाएगी? रेफ्रिजरेटर स्पेस के अंदर जाएगी, इवापोरेटर कॉइल के अंदर जाएगी। So here what will happen? They absorbing, they pick up, they getting the heat from the refrigerator space and producing the refrigerating effect in that space. So you will get the chilled and warm air यहाँ पे आपको मिलेगा ये लेवल से। So what will happen? What about the pressure and temperature of the air? The pressure is constant. So fourth process क्या है? आपकी constant pressure, evaporator process. The P1 is equals to P4, the constant process 4 to 1. But कितना amount of heat absorb हो रहा है? That you have to find out. What about the temperature of the air? The air का temperature जो है वो gain हो जाएगा। कितना gain होगा? T4 से लेके T1 तक। And what about the volume of the air? The volume of the air is also goes on increases from V4 to V1. And here it is, heat is absorbed during the process 4 to 1. क्या हो जाएगा? 1 kg of air के लिए mass flow rate 1. So Cp in bracket higher temperature कौन सा है? T1 minus lower temperature T2. इतना हीट जो है वो absorb हो जाएगा। इतना हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी, रिमूव होगी फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज चैम्बर से। दैट इज द ये इतना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? व्हाट अबाउट द COP ऑफ दैट गिवन रेफ्रिजरेंट? हीट एब्सॉर्ब डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन W। सो वर्क डन कैसा निकालेंगे? Heat rejected minus heat absorbed, that is the net work done. Okay. So COP is equals to heat absorbed with the one CP in bracket T1 minus T4 divided by net work done जो heat rejected इतना है T2 minus T3 minus CP in bracket में T4 minus T4 T1 minus T4। अब Cp यहां से कॉमन निकाल के वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन को हम लोग आगे मॉडिफाई करते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस 1 से 2 और 3 to 4 एक लॉ हम लोग जानते हैं जो टीडी में हम लोग पढ़े, एडियाबैटिक लॉ, आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक लॉ। Pv रेशियो गामा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। So 1 से 2 ये प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर इनटू प्रेशर रेशियो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 अपॉन P1 रेशियो टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। Again, what about the isentropic adiabatic law in the process 3 to 4? Temperature into pressure ratio T3 upon T4 that is equals to P3 upon P4 to gamma minus 1 upon gamma। So राइट हैंड साइड हम लोग देखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है? तो क्या है? P1 is equals to P4 और क्या है? P2 is equals to P3। तो ये राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? T2 upon T1 is equals to T3 upon T4। अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो T4 upon T1 क्या बचेगा? T3 upon T2। अब देखिएगा यहां से आपको कॉमन निकालना है T1, यहां से T2। देखिए so COP of that given air representative T1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 minus T4 upon T1 T2 यहां से निकाल दो तो 1 minus T3 upon T2 minus T1
निकालो 1 माइनस T4 अपॉन T1। अब देखिए गाइस T1 अपॉन T4 अपॉन T1 इसके जगह पे ये टर्म रख दो। T1 in bracket 1 minus T3 upon T2 upon T2 in bracket 1 minus T3 upon T2 minus T1 in bracket 1 minus इसके जगह पे क्या बचेगा अपना T3 upon T2। अब ये टर्म अगर कॉमन निकालेंगे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ the COP is equals to given refrigeration system T1 upon T2 minus T1। एग्जाम में कभी के बार आता है, डेरिवेशन और आगे भी है, वो हम लोग निकालेंगे 5 नंबर के लिए आएगा। तो अभी गाइस आपको कंप्रेसर वर्क डन एंड एक्सपेंशन वर्क डन फाइंड आउट करना है, देन उसका नेट वर्क डन लेना है, देन आगे सीओपी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए तो चलिए मैं इसको रब करता हूं। अगर हम लोग एक लॉ जानते हैं PV is to N is equals to C, so compressor work done is equals to N upon N minus 1। okay, doing the process कहां से compressor work done 1 से 2 P2 V2 minus P1 V1 of PV is equals to RT होता है, आप जानते हैं N upon compressor work done हम लोग निकाल रहे हैं N upon N minus 1 RT2 minus RT1, R कॉमन ले लो N upon N minus 1 T2 minus T1। अब क्या है एक्सपांशन वर्क डन। एक्सपांशन वर्क डन प्रोसेस कहां से कहां है 3 to 4 N upon N minus 1 P3 V3 minus P4 V4 N upon N minus 1 RT3 minus RT4 R कॉमन लो N upon N minus 1 T3 minus T4, दोनों का डिफरेंस नेट वर्क डन आपको मिल जाएगा। नेट वर्क डन N upon N minus 1 T2 minus T1 माइनस इधर क्या बचेगा देखिए N upon N minus 1 R T3 minus T4। और अगर इसको कॉमन लिए N upon N minus 1 R T2 minus T1 माइनस ब्रैकेट में क्या है T3 minus T4। सो गाइस हीट एब्जॉर्ब हमारे पास है R, और हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। R बोले तो क्या है Cp minus Cv, R is equals to Cp minus Cv। ओके, अगर Cv कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा Cp upon Cv minus 1 Cp upon Cv minus 1 Cv कॉमन लिए तो, और ये क्या होता है रेशो गामा Cv ब्रैकेट में गामा minus 1। सो R की जगह पे टर्म रख दो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू N upon N minus 1 R के जगह पे Cv ब्रैकेट गामा minus 1 ब्रैकेट में क्या है
T2 minus T1 minus bracket T3 minus T4 और हीट एब्जॉर्ब COP क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय बर्नर। हीट एब्जॉर्ब है हमारे पास कितना था? Cp ब्रैकेट T1 minus T4 अपॉन n minus 1 Cp ब्रैकेट में गामा माइनस 1 और T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4 ओके Cp अपॉन Cv गामा ये गामा को इधर ले सो दैट इज ये आपका फाइनल इधर हो रहा है फाइनली जो आपको मिल रहा है T1 minus T4 n upon n minus 1 Cp upon Cv gamma gamma minus 1 upon gamma bracket में T2 minus T1 minus in bracket T3 minus T4 ठीक है so in this way guys I hope that you should be clear